Assalamu alaikum everyone. Welcome to SR American's online portals. Myself Zubair, and today I'm going to discuss probability for class 10. And in this lecture, we'll discuss the meaning of probability, its definition, and then some terms related to it. Okay? Now, before moving on to that, I must tell you that this is one of the most important tools in mathematics today. And it is one of the topics in mathematics which is related to your real life, which relates to your day-to-day activities. Okay, and beyond that, with regards to your academics, you are learning it in class 10. Inshallah, when you will go in class 11 and 12, you will see it there. And even after that, if you go for engineering, you choose science, you go for statistics, economics, you will see it there. And even after that, surprisingly, if you go for job exams after graduation, now there is almost no job exam where the questions on probability are not asked. It is asked everywhere. Okay, so this is the importance of the topic probability with regards to academics. Now, let us try to understand what it means, what probability means. You have always heard the word chance in your life. Okay, you always come across this word. For example, हम बोलते हैं कभी chance की बात है, किस्मत का खेल है. Okay? Example, we always see the news, okay, all of us do, and there is always a weather report in the news. Okay, what does the weather reporter say? He says how is going to be the weather for next day or next few days. Okay, अक्सर आपने सुना होगा कोई weather reporter बोलता है कल भारी बारिश होने की संभावना है ना? So although he is not certain कि कल बारिश होगी, but he says there is a chance. There is a high chance that tomorrow it may rain. Okay. Now, अब इसको कैसे relate करोगे अपनी real life से? For example, you are planning a trip with your friends tomorrow. But after hearing this report, what will you do? Obviously, आप बोलोगे यार नहीं कल नहीं जाएंगे. Okay, किसी और दिन जाएंगे. We'll go some other day. Okay, so this is the impact of this topic on your day-to-day life. Similarly, if you see the share market, what do we do in share market? The investors, they buy the shares of a company. किसी प्राइस पे वो एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं. ओके, फिर क्या होता है? फिर जब उन शेयर्स की प्राइस मार्केट में अप होती है, वो क्या करते हैं? वो फिर उसको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं. ठीक है? But let me tell you one interesting thing that in Indian share market, majority of the investors they lose. उनका दिवालिया हो जाता है. ओके, they डूब जाते हैं. But जो minor quantity है, they earn profits, they earn gains. Okay? But अगर आप किसी से भी पूछोगे जो हारता है शेयर मार्केट में, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि किस्मत खराब है, मेरा लक नहीं. ठीक है? बट जो लॉजिकल बंदा होता है, जो लॉजिकली सोचता है, वो क्या करता है? वो इस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई करता है. वो क्या करेगा? वो उस कंपनी का डीप एनालिसिस करेगा अच्छी तरह से, और मार्केट का भी हाल देखेगा कि क्या हो रहा है. क्लियर? और फिर इन्वेस्ट करेगा, और पहले देखेगा कि मुझे किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, किस शेयर में इन्वेस्ट करना है. ठीक है? दैट्स व्हाई दे अर्न प्रॉफिट्स. क्लियर? एंड another example, for example, we all see cricket. It's the favorite game of all of us. Okay, suppose there is a match and we come across a point in the match where a team needs to score 2 runs on the last ball. 2 runs चाहिए last ball, and the batsman is average. इतना भी अच्छा बैट्समैन नहीं है कि डेफिनेटली करके देगा, और इतना भी बुरा बैट्समैन नहीं है, खराब बैट्समैन नहीं है कि नहीं करके देगा. ओके, एंड बॉलर इज आल्सो एवरेज. एंड सपोज योर फ्रेंड चैलेंजेस यू, आस्क्स यू इफ ही विल डू इट और नॉट, व्हाट विल यू से? तो जो लॉजिकल आंसर होगा वो होगा कि भाई 50-50 है. अक्सर हम बोलते हैं 50-50 चांसेस. ठीक है? सो अननोइंगली ही यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन आंसरिंग हिम, व्हाइल आंसरिंग हिम. ओके, सम एग्जांपल्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, आज आप देखते हो क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है? वहां पर भी आप क्या चांस का वर्ड अक्सर सुनते हो. सो कहने का मतलब क्या है? बेसिकली इट इज दैट कि वी ऑलवेज कम अक्रॉस दिस वर्ड चांस इन अवर डे टू डे लाइफ. एंड विद रिगार्ड्स टू दिस वर्ड टर्म चांस, देयर इज ऑलवेज अनदर टर्म एसोसिएटेड विद इट, अनसर्टेनिटी. भैया बारिश होने वाली है, कितने चांसेस है?
सो व्हाट डू आई वांट टू से, कहने का मतलब यह है कि अक्सर आप इस वर्ड चांस को अपनी लाइफ में देखते हो, एंड विद रिगार्ड्स टू दिस टर्म चांस देयर इज ऑलवेज अनदर टर्म एसोसिएटेड विद इट। तो चांस है भाई, तो कितना है, हाउ मच, उसको न्यूमेरिकली मेजर अगर करना है तो कितना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था, कोई वेदर रिपोर्टर बोलता है कि कल बारिश होने वाली है, तो कितने चांसेस है बारिश होने के, कितने चांसेस है कि एक कंपनी प्रॉफिट में होगी, उसके शेयर्स प्रॉफिट में होंगे। तो इसी चांस को मेजर करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी इज सिंपली इट मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। किसी चीज के होने के कितने चांसेस है या ना होने के कितने चांसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। ओके, नाउ अब इस चांस को मेजर करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली डिफाइन करना है, ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज न्यूमेरिकल मेजर देयर इज मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड इन इट। बट मैथमेटिकली डिफाइन करने से पहले आपको इसके रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स समझनी है। ओके, टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली you at first learn some terms related to this topic. So the first term which you have to study about it is the random experiment. Okay? Now what is random experiment? Let's try to understand it. An experiment is said to be a random experiment. अगर आपके 3 conditions satisfy हुए, if there are 3 conditions, if the 3 conditions are satisfied, कौन कौन सी condition है? First condition is that जो आप experiment कर रहे हो, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो एक से ज्यादा होने चाहिए। द पॉसिबल आउटकम शुड बी मोर देन 1। ठीक है, क्लियर? जो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर जो पॉसिबल रिजल्ट्स आने वाले होंगे वो एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। नाउ कंडीशन नंबर 2, अब आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स, बट यू शुड नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट इट बिफोर हैंड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आप पहले ही इस कंडीशन में नहीं होने चाहिए कि आप पहले इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा आउटकम उनमें से आएगा। ऑल्दो यू नो द पॉसिबल आउटकम्स, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट आउटकम विल बी द रिजल्ट फ्रॉम दोज आउटकम्स, कि उन आउटकम्स में से कौन सा आपको आएगा वो आप नहीं बता सकते हो। तो ये दूसरी कंडीशन है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बिफोर हैंड आउट ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो दिस सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, जो पॉसिबल आउटकम्स है जितने भी है, फॉर एग्जाम्पल किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो तीनों के आने के चांसेस बराबर होने चाहिए। कोई ऐसा आउटकम नहीं होना चाहिए जिसके बाकी आउटकम्स के आने से चांसेस ज्यादा हो। सो ऑल द आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब है हर एक आउटकम के आने के चांसेस बराबर होने चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशंस किसी एक्सपेरिमेंट में सेटिस्फाई हुई तो हम बोलेंगे उस एक्सपेरिमेंट को वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या 3 कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, यू शुड नॉट बी एबल टू टेल द आउटकम बिफोर हैंड, आप पहले नहीं बोल सकते हो कि कौन सा आउटकम आएगा उनमें से, ऑल्दो यू नो द पॉसिबल आउटकम्स। तीसरी कंडीशन, जो भी आउटकम्स है दे आर इक्वली लाइक। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स हम कैसे देंगे? सिंपल सी एग्जांपल, व्हेन यू टॉस ए फेयर कॉइन, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फेयर, रिमार्क, ठीक है। व्हेन वी टॉस ए फेयर कॉइन, आपको पता है जब आप कोई फेयर कॉइन लेते हो, ठीक है, क्लियर, उसमें 2 फेसेस होते हैं, एक फेस पे हेड होता है और एक फेस पे टेल्स होता है, क्लियर। तो जब आप उस कॉइन को टॉस करते हो, यू टॉस इट। नाउ पहली कंडीशन, देयर शुड बी मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। यस, इसमें एक फेस पे हेड होता है, दूसरे फेस पे टेल होता है, उन 2 में से कोई भी आ सकता है। सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयर शुड बी मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। 2 यहां पर पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ द सेकंड कंडीशन इज दैट यू शुड नॉट बी एबल टू टेल द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बिफोर हैंड। ठीक है, नाउ आप जब कॉइन को टॉस करते हो, बट आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्या पहले बोल सकते हो क्या आएगा इनमें से? नो, यू कैन नॉट से इट। सो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशन, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली। जो यहां पर पॉसिबल आउटकम्स है उन सब के आने के चांसेस बराबर होने चाहिए। ओके, यहां पर देखिए आप इस एक कॉइन को, एक फेस पे हेड है, एक फेस पे टेल है,
तो दोनों एक एक फेस पे है, तो इसीलिए दोनों के आने के चांसेस बराबर है। कोई ऐसा फेस नहीं है कि जो दो पे है, कोई ऐसा सॉरी फॉर एग्जाम्पल आउटकम में नहीं है हेड और टेल जो दो फेसेस पे है, दोनों एक एक फेस पे, तो दोनों के आने के चांसेस बराबर है। तो यहां पर तीनों कंडीशन सेट्स पे हो रही है। पहली कंडीशन मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, हाँ दो यहां पर आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी कंडीशन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम बिफोर हैंड, आपको पता है क्या 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 पॉसिबल आउटकम्स है, बट आप पहले ही नहीं बोल सकते कि इनमें से कौन आएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यस, जितने चांसेस आने के टेल के हैं उतने ही हेड के आने के चांसेस है। सो बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली मीन्स दिस सेटिस्फाइज दिस एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए फेयर कॉइन, इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो टॉसिंग ए फेयर कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर देखिए मैंने वर्ड फेयर क्यों यूज किया। लुक हियर, अगर आप कोई एक ऐसी कॉइन लोगे जिसमें दोनों तरफ से हेड होगा, आपने अक्सर सुना होगा शोले की मूवी में, वहां पर एक कॉइन थी जय के पास, वो वहां पर दोनों तरफ से वहां पर हेड था, तो जब भी वो टॉस करता था कॉइन हमेशा हेड ही आता था। ओके, सो उस कॉइन को फेयर कॉइन हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, देखिए क्यों, बिकॉज जब दोनों तरफ से हेड होगा, अब कितने भी बार उसको टॉस करो हमेशा हेड ही आएगा आंसर, तो वहां पर देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, हेड्स। तो पहली कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, देयर शुड बी मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। सो जब आप ऐसी कॉइन को टॉस करोगे वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा, उसको बोलते हैं बायस्ड कॉइन। क्या बोलते हैं, बायस्ड कॉइन, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से एक और एग्जांपल है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, व्हेन यू रोल ए फेयर डाई। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं फेयर डाई, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। नाउ डाई आपने देखा होगा, इट्स ए क्यूबिकल ऑब्जेक्ट जिसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे कुछ डॉट्स होते हैं। एक फेस पे 1 डॉट होता है, दूसरे फेस पे 2 डॉट्स, तीसरे फेस पे 3 डॉट्स, इट्स एंड अप टू 6, ठीक है, 6 फेसेस, क्लियर। एंड जब आप इस डाई को रोल करोगे, व्हेन यू रोल इट, ठीक है, अब इन फेसेस में से कोई भी आ सकता है, आपको 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, क्लियर। सो जब आप इसको डाई को रोल करोगे, क्लियर, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, सो देयर आर मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, क्लियर। सो पहली कंडीशन जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की थी वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट देयर शुड बी मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, दैट सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम बिफोर हैंड, कैन यू प्रिडिक्ट इट। जब आप एक डाई को रोल करोगे, नो, इनमें से कोई भी आ सकता है ना, ऑल्दो यू नो पॉसिबल आउटकम्स, बट आप नहीं बोल सकते कि इनमें से कौन सा आएगा विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सो भैया दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो तीसरी कंडीशन, और ऑल द आउटकम्स इक्वली लाइकली, यस, बिकॉज ऑल द आउटकम्स, ठीक है, दे आर ऑक्यूपाइंग वन फेस ऑफ द डाई, ठीक है। अगर आप डाई के 6 फेसेस देखोगे, हर एक नंबर एक एक फेस पे है, 1 एक फेस पे, 2 एक फेस पे, 3 एक फेस पे, इस तरह से 6 भी एक फेस पे है, क्लियर। सो इसी तरह से, इसी वजह से हर एक के आने के चांसेस बराबर है। यहां पर कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसके बाकी आउटकम से आने के चांसेस ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। सो ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब यहां पर भी मैंने वर्ड किया यूज, रोलिंग ए फेयर डाई। देखिए, मैं एक ऐसा भी डाई ले सकता हूं जहां पर 2 फेसेस पे 1 हो, ठीक है, एक फेस पे 1, दूसरे फेस पे भी 1, फिर तीसरे फेस पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो पॉसिबल आउटकम्स है 1, 3, 4, 5, 6, उनमें से जो 1 है वो 2 फेसेस पे है। देखिए अब कौन कौन सी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि जब मैं एक ऐसे डाई को रोल करूंगा जिसमें 2 फेसेस पे 1 हो, देयर आर मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, यस, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, या 6 आ रहा है, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम बिफोर हैंड, यस, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट लुक एट द थर्ड कंडीशन, ऑल द आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली। क्या यहां पर सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली है? नो, बिकॉज 1 यहां पर 2 फेसेस पे है, उसके आने के चांसेस बाकी आउटकम से ज्यादा है। सो ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। सो यहां पर तीसरी कंडीशन वायलेट हो रही है। सो आई वुड से अगर आप ऐसे डाई को रोल करोगे जिसपे 2 फेसेस पे 1 होगा, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। वाई?
because it simply violates the third condition, which says all the outcomes should be equally likely. Okay? So, there are some other examples of a random experiment. For example, you have heard about the game of cards. क्या होता है, आपके पास एक डेक होता है कार्ड्स का, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. 4 तरह के कार्ड्स होते हैं आपके पास होते हैं स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स, सभी 13 होते हैं नंबर्स में. ओके, तो उनको मिला के आपके पास आते हैं 52 कार्ड्स. अगर आप इन 52 कार्ड्स में से कोई कार्ड रेंडमली ड्रॉ करोगे, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे और एग्जांपल्स. अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे, फेयर कॉइन्स को, क्लियर? ठीक है? सो व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? इट इज सिंपली एन एक्सपेरिमेंट which satisfies 3 conditions. First condition, there should be more than 1 possible outcomes. Second condition, we cannot predict the outcome of the experiment beforehand. तीसरी condition, all the outcomes should be equally likely. So this is the first term with regards to your topic probability. Now, the second term, it is also associated with this random experiment. It is known as the sample space of a random experiment. Sample space. अब देखिए बेटा, सैंपल स्पेस क्या है. अभी आपने बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. जब आप इन सारे आउटकम्स को एक साथ लेते हो, कंबाइन करते हो, उनका एक सेट बनाते हो, उस सेट को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो, तो जो उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको जब हम कंबाइन करते हैं एक सेट में, ठीक है, वो सेट हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का. सो सैंपल स्पेस किसका होता है? हमेशा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का होता है. उसमें क्या होता है? सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम एक साथ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये फेयर कॉइन को टॉस करते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अभी हमने एक्सप्लेन किया. अब इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है. ठीक है? तो जब इन 2 आउटकम्स को आप एक सेट में लेते हो, हेड्स को आप एच से लिखोगे, टेल्स को आप टी से लिखोगे. तो जब आप इनको एक सेट में लोगे, ब्रेसेस के अंदर लोगे, सेपरेट करोगे कामा से, या आप इंशाल्लाह आगे जगह 11th क्लास में देखोगे कि हम कैसे सेट को लिखते हैं. ठीक है? यू इनक्लोज द एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास. ठीक है? क्लियर? तो जो यहां पर आपका सेट बनेगा एच कॉमा टी, ठीक है, क्लियर, मीन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये सेट हमारा होगा सैंपल स्पेस इन इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, व्हेन यू टॉस ए फेयर कॉइन. इसी तरह से जब आप एक डाई को रोल करोगे, वहां पर क्या पॉसिबल आउटकम्स है? या तो आपका 1 आएगा, या आपका 2 आएगा, या आपका 3 आएगा, या आपका 4 आएगा, या आपका 5 आएगा, या आपका 6 आएगा. ओके, ठीक है? तो इनमें से कोई भी आ सकता है. बट जब आप इनका एक सेट बनाओगे, इन सभी पॉसिबल आउटकम्स का 1 2 3 4 5 6, जब आप इनको एक सेट में लोगे, ठीक है, क्लियर, तो वो इसका इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनेगा. ठीक है? और इस सैंपल स्पेस को हम हमेशा एक कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? एस. ठीक है? तो यहां पर एस क्या आएगा आपका? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6. इसी तरह से अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे, यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है, तो वहां पर क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो, ख्याल रखिएगा. ठीक है? तो या तो पहली कॉइन पे भी हेड आएगा, या दूसरी कॉइन पे भी हेड आएगा. एच एच, ये आपका एक आउटकम बनेगा. ठीक है? इसी तरह से दूसरा आउटकम आपका इस तरह से बनेगा, या तो पहली कॉइन पे हेड आएगा, अगर पहली कॉइन पे हेड आ गया तो दूसरी कॉइन पे टेल आएगा. तो ये दूसरा पॉसिबल आउटकम है. इसी तरह से या तो पहली कॉइन पे टेल आएगा और दूसरी कॉइन पे हेड, टी एच, ये तीसरा पॉसिबल आउटकम है. या दोनों पे टेल आएगा, टी टी. सो दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर. इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ठीक है? तो जब आप इनको एक सेट में लोगे, ये उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाएगा. किस रैंडम एक्सपेरिमेंट का? व्हेन यू टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर. क्लियर? ठीक है? सो दिस इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. इस टर्म को अच्छी तरह से समझना बेटा. इट इज कॉल्ड द इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. इवेंट क्या होता है?
ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय एन इवेंट? लुक, जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर अब हम किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाई को रोल करता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन इवन नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए अलग से एक इवेंट डिफाइन करूंगा। आई विल डिफाइन एन इवेंट फॉर इट। तो इवेंट किसके लिए डिफाइन होता है? जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, जो आप चाहते हो, ठीक है, क्लियर? सो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं एक इवन नंबर आने में, मीन्स या तो 2 आना चाहिए या 4 या 6। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल डिफाइन एन इवेंट, उसको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट अस सपोज ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन वी रोल ए डाई, फेयर डाई, ठीक है। अब देखिए, अब इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो उसके फेवर में है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है, जो एलिमेंट सैंपल स्पेस में से उस चीज के फेवर में है, वो उस इवेंट में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा जब आप एक डाई को रोल करते हो? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। बट आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो? आप इंटरेस्टेड हो कि आपको कोई इवन नंबर आना चाहिए। अब इन नंबर्स में से इवन कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है ना? ठीक है। सो आई वुड से आपके इस इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। सो 2 4 6 इसका आप अलग से सेट बनाओगे, यही आपका इवेंट बनेगा ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इसी को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे। सो ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 4 6 मीन्स वो एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के, ठीक है, वो आउटकम सैंपल स्पेस के जो आपके फेवर में है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो उसके फेवर में है, वही आप इसमें लिखोगे, इस सेट में लिखोगे। तो अगर आप देखोगे, इट इज सिंपली एन इवेंट इज सिंपली एन आउटकम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्लियर? जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो उसके फेवर में जो आउटकम्स है उसी को बोलते हैं इवेंट, ठीक है, क्लियर? बट इन मैथमेटिकल टर्म्स वी वुड से दैट एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये क्या होता है? एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। सबसेट क्या का मतलब क्या है? अब देखो, इस ए में हमें क्या आ गया, जो हमने ए इवेंट डिफाइन किया ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें आ गया 2 4 एंड 6। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी सैंपल स्पेस में है, they are contained in the sample space, so that's why we say it is a subset of sample space. So in mathematical terms an event is simply a subset of sample space. Okay, clear? Because it is already contained in the sample space. ठीक है, उसी में से ये एलिमेंट्स हम निकालते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट में सपोज मैं इंटरेस्टेड हूं इन गेटिंग ए प्राइम नंबर, लेट अस डिफाइन, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक इवेंट डिफाइन करेंगे, लेट अस सपोज बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब देखो बी में क्या क्या आएगा, मीन्स आपको 1 से 6 तक देखना है कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, कौन कौन सा नंबर है इनमें से प्राइम। 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी और 1 से 6 तक कोई और प्राइम नंबर नहीं है। 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन सा नंबर इनमें से प्राइम है? 2 है, 3 है, 5 है। तो हमारे बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इसके फेवर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। सो आई वुड से, ठीक है, बी इज, अगर आप देखोगे बी विल बी ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसके भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में ऐसे होते हैं, इट्स कंटेन्ड इन द सैंपल स्पेस। तो कोई भी आप इवेंट डिफाइन करोगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, वो हमेशा सैंपल स्पेस में होगा, उसके एलिमेंट्स हमेशा सैंपल स्पेस में होते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स वी से एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। इसी तरह से कुछ और इवेंट्स के एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर? तो अगर अब मैं इंटरेस्टेड हूं इन गेटिंग ए टेल, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इवेंट डिफाइन करूंगा। लेट सपोज पी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल व्हेन यू टॉस ए फेयर कॉइन। तो बताओ पी में कौन सा एलिमेंट्स आएगा। अब उसके लिए पहले आपको देखना है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या है। क्या है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस? अब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ओब्वियसली या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो उसके सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स है, एच एंड टी। अब आपका इवेंट क्या है? ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है, पी। तो बताओ पी में क्या एलिमेंट आएगा? ओनली टी। सो पी में सिर्फ टी आएगा। जो आपका इवेंट पी है उसके फेवर में सिर्फ टी आएगा, क्लियर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा इवेंट इज एन आउटकम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, ठीक है,
विच आर इन फेवर ऑफ व्हाट यू वांट, जिसके बारे में आप, ठीक है, इंटरेस्टेड हो, उसके फेवर में जो आउटकम्स है, ठीक है, जब आप उनको कंबाइन करोगे तो वो आपका एक इवेंट बनाता है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. क्लियर? आज हमने देखा प्रोबेबिलिटी की मीनिंग देखी, उसकी अपनी थोड़ी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस देखे और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे? विल स्टडी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. नाउ व्हेनेवर यू स्टडी प्रोबेबिलिटी, वी मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन मैथमेटिकल टर्म्स. जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की होती है. ठीक है, याद रखना इस चीज को. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से इसको देखेंगे. अनदर साइड नोट, जो इस प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री है वो कहां से? इट्स फ्रॉम गैम्बलिंग. अभी मैं जो बोल रहा था, चांसेस. ठीक है, तो जो गैम्बलर्स है उन्होंने क्या किया? दे थॉट कि हम क्या ऐसा करें कि जो हमारी गैम्बलिंग है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जीते, ज्यादा चांसेस को हो कि हम जीते. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ टूल्स और टेक्निक्स अपनाई, कुछ ट्रिक्स अपनाई, जिनसे उनको हमेशा ज्यादा जीतते थे वो. ठीक है, फिर आगे आगे धीरे धीरे इन्हीं टूल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स को कंबाइन करके आपका जो प्रोबेबिलिटी है एक फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट बन गए. सो दिस इज रिगार्ड्स टू इट्स हिस्ट्री. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.